Shobhit and Mohit are good friends. They study in class 5. Today in the morning, they went to a park and discussed the topic of fractions. Shobhit asked Mohit the following questions. If there are 500 flowers in the park and half of them are roses, one fourth are jasmine, and the remaining are marigold, then how many flowers of each kind are there in the park? One more question. If there are a total of 60 animals in a zoo and one third of them are deer, one fourth are elephants, and one tenth are lions, then how many animals of each kind are there in the zoo? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड फिफ्थ में आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शंस। अभी जो आपने दो कन्वर्सेशन सुने उसमें जो दो एग्जांपल्स आपको पूछे गए उसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपने लास्ट ईयर शायद सुने हैं, लेकिन हम उन्हीं को कुछ एलेबोरेट आज करेंगे। दैट इज हाफ, वन थर्ड एंड वन थर्ड, वन फोर्थ, ये कुछ ऐसे टर्म्स है। ठीक है, तो हाफ मीन्स क्या होता है, वन थर्ड क्या होता है, वन फोर्थ क्या होता है, और ये जो दो क्वेश्चंस है इनके एक्चुअली आंसर्स क्या है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शंस लेसन को समझना है। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज अवर हाफ। ओके, सो इफ यू टेक अ होल लाइक दिस एंड मेक इक्वल टू पार्ट्स ऑफ इट, then each part is known as half. So it is a half, and this is also half. Okay, and we denote it as 1 upon 2, means we make two equal parts of one whole and taken one part. Okay, so 1 is numerator and 2 is denominator. Got it? So तो जितने हम इक्वल पार्ट बनाते हैं दैट वी राइट एट द डिनोमिनेटर, और उनमें से जितने पार्ट टेक आउट करते हैं, टेक इन करते हैं, दैट इज द न्यूमरेटर। नेक्स्ट इज इफ वी मेक थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, दिस इज अ होल, इफ वी मेक थ्री इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ओके, सो these are the three equal parts, and each part is known as one third. So we will write it as one third. Okay, so this is one third, this is one third, and this is also one third. Here also numerator is 1 and denominator is 3. We make here three equal parts of one whole. Make four equal parts of a whole like this. Then each part is known as one fourth. So this is one fourth, and each part is one fourth. We write it as like this: one fourth, one fourth, one fourth, and one fourth. So when an object is divided into a number of equal parts, a part of the object is represented by fractions. Like if we make two parts of a whole, then each part is 1 upon 2, means half. So this is a fraction. As we made three equal parts of a whole, then each part is 1 upon 3. This is also a fraction. And if we made four equal parts of a whole, then we get 1 upon 4 as each part. This is also fraction. So these are the part of a whole and are known as fractions. Now we will see these terms half, one third, and one fourth with some example. As you see in picture, this is half of pizza. This is one third of pizza, and now it is one fourth of pizza. Now we will see some basic facts of fractions. In this figure, you will get to see a whole is divided into 8 equal parts, and out of them 5 parts are shaded. So we will write it as 5 upon 8. Here
means numerator 5 is at numerator and 8 is at denominator, means total equal parts are 8 and out of them 5 parts are taken. So here in 5 upon 8, 5 is taken out and 8 are equal parts. Now see these examples: 1 upon 2, 10 upon 7 and 3 upon 8. In these fractions, you will get notice that numerator of each fraction is smaller than the denominator. Such type of fractions are called proper fractions. ओके, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल 5 upon 3, नेक्स्ट इज 70 upon 10, या फिर वी विल सी 8 upon 3. In these fractions, numerators are greater than their denominator. Such type of fractions are called improper fractions. Okay, and third type is where you will see some such type of numbers 3, 1 upon 2. तो ये फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें एक होल नंबर है और दूसरा है फ्रैक्शन. तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें होल नंबर भी होती है और फ्रैक्शन होती है, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस. सो दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. Here 5, 1, 2 upon 3. This is also mixed fraction. 7 whole 8 upon 9. This is also mixed fraction. Can you identify 27 upon 4 is a which type of fraction? Of course, it is a improper fraction because its numerator is greater than the denominator. So now the question is that can we convert it into mixed fraction? Yes, of course we can convert improper fraction into mixed conversion. To do this conversion, we will divide numerator by denominator. So here we will write here 27 and here is 4. Now 4 6 are 24, 4 7 are 28. तो हम लेंगे यहाँ पे 4 6 are 24 and remainder is 3. तो आपको क्या करना है, जो क्वोशिएंट है वो हम पहले लिखेंगे होल नंबर पार्ट में, और फिर जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रिमाइंडर ऊपर, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिवाइजर वो लिखेंगे यहाँ नीचे. तो इसका कन्वर्शन हो गया मिक्स में 6 होल 3 upon 4. तो इस तरह से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. इसी तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो इम्प्रॉपर का मिक्स में होता है और मिक्स का इम्प्रॉपर में. वो कैसे? जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, यही ले लिया है 6 होल 3 upon 4 इक्वल टू. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू गेट 4 multiply 6, और जो क्वेश्चन आंसर आता है प्रोडक्ट उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. सो प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर वी विल कीप एज इट इज. सो 4 6 are 24 plus 3 as it is upon 4, that is equal to 27 upon 4. So we get the improper fraction here as it. Now see some more examples. For example, 1 upon 8, 3 upon 8, 5 upon 8 and 7 upon 8. These are the fractions whose denominator is same. So such type of fractions are called like fractions. तो ऐसे fractions को हम कहते हैं like fractions. Now we see some more example. 2 upon 3, 5 upon 7, 6 upon 8 या फिर 6 upon 11. So these are the fractions whose neither numerator nor denominators are same. Such type of fractions are called unlike fractions. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. सी सम मोर एग्जांपल. 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5, 1 upon 6. ये ऐसे फ्रैक्शंस है जिसका न्यूमरेटर सेम है. सो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, सेम है मतलब 1 है,
जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. So these are also types of fractions. Got it? Now we will see equivalent fractions. So fractions that represent the same part of a whole are said to be equivalent fractions. One whole का जो same part दिखाते हैं जो fractions, that are equivalent fractions. For example, I have taken here two whole. अब इस whole के मैं two equal parts बनाए. Okay, so we will represent it as 1 upon 2. Each part is 1 upon 2. Now, in another figure, I made here 4 equal parts. Okay, 1, 2, 3, 4. And now I shade this part in this way. So, I will write it as 2 upon 4. Got it? Next, if I take another figure here, I made a fold and now I will make 4 parts in this way and again 4 parts. Okay, now I will shade it in this way. First we need to count how many parts I made. यहाँ पे कितने पार्ट्स बनाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पार्ट्स बनाए, so I will write 8 at the denominator. अब उनमें से कितने पार्ट लिए मैंने? 1, 2, 3, 4 पार्ट्स लिए. ओके, अब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे मैंने हाफ पार्ट लिया था, यहाँ पे होल का हाफ पार्ट लिया और यहाँ पे भी होल का हाफ पार्ट लिया. बट इसको मैंने अलग अलग तरीके से लिखा क्योंकि जिसके पार्ट्स बनाए वो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स बनाए, यहाँ 8 इक्वल पार्ट्स बनाए. यहाँ पे 4 में से 2 पार्ट्स लिए, यहाँ 8 में से 4 पार्ट्स लिए. बट the shaded portion is the same, so these fractions are equivalent fractions. But आपको कभी कोई क्वेश्चंस आते हैं, find the equivalent fractions of. आप दो तरह से equivalent fractions find कर सकते हो. For example, जैसे आपको 2/3 के क्वेश्चन में पूछा है कि इसके 4 equivalent fractions आप find out करो, तो आप तो ये देखो कि this is the smallest fraction, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके 4 equivalent fractions find कर सकते हो. तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. जैसे सबसे पहले तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो यू गेट 4/6. अब मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो यू विल गेट 2/3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 6/9. अब मैं इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 2/3 equal to 2 multiply 4/3 multiply 4 that is equal to 8/12. और अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 2/3 equal to 2 multiply 5/3 multiply 5 is equal to 10/15. So these fractions are equivalent fractions of 2/3. So we can write therefore equivalent fractions of 2/3 are 4/6, 6/9, 8/12, 10/15. So these are the 4 required equivalent fractions. आपको क्वेश्चन आया, write the 3 equivalent fractions of 264/432. एंड ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर से. तो ऐसे फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है. तो इट विल बी बेटर इफ यू डिवाइड दिस टू फ्रैक्शंस विथ सेम नंबर. सो लाइक दिस 264/432. अब आपको ये देखना है इसमें कि दोनों नंबर में किसी की टेस्ट लगनी चाहिए. तो दोनों में 2 की टेस्ट लगती है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे. सो यू गेट 264 डिवाइडेड बाय 2/432 डिवाइडेड बाय 2. सो यू गेट हियर 132/216. तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 1. हमें 2 और फाइंड करने हैं, तो अभी हमने 2 से डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि बोथ दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. क्योंकि 4 की टेस्ट आपको पता है, 1s और 10s प्लेस की जो डिजिट है उनसे बनने वाले नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो दी गई नंबर 4 से डिविजिबल होती है. 64 is divisible by 4 and 32 is also divisible by 4. तो 264/432 is equal to 264 divided by 4.
अपॉन 432 इज डिविजिबल बाय 4। अब देखो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 4 9 जा 36। यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो सो यू गेट 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। अब हमने 4 से डिवाइड किया, अभी हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 की टेस्ट दोनों में लगती है। सो 264 अपॉन 432 इक्वल टू, डिवाइड करो 264 डिवाइडेड बाय 8, 432 डिवाइड बाय 8। So you get 8 3 जा 24, remain 2, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 and 8 4 जा 32. So these three are equivalent fractions of this fraction. So you write here, therefore equivalent fractions of 264 upon 432 are 132 upon 216, 66 upon 108 and 33 upon 54। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बेसिस पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 40 upon 56 विथ डिनोमिनेटर 7। अब इसमें नंबर्स अलग अलग तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो आपको जो फ्रैक्शन दिया है 40 upon 56, इसका हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसके डिनोमिनेटर में 7 आए। तो उसके लिए आप क्या करो, सीधा सीधा 7 से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। सो यू गेट 7 8 जा 56। तो 7 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट 56। तो आप क्या करना है, 8 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। सो इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 56 डिवाइडेड बाय 8। सो यू गेट 5 upon 7। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5 upon 7। गॉट इट? नाउ next question is check whether 3 upon 4 and 9 upon 12 are equivalent fractions or not। हमें चेक करना है कि ये जो दो दिए गए फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके लिए हमें इसकी जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट, उसको पहले समझना जरूरी है। मान लो आपको दो फ्रैक्शन दिए, एक है a अपॉन बी और दूसरा है c अपॉन डी। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी a को d से मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट a मल्टीप्लाई d। फिर आप क्या करो, b को c से मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट b मल्टीप्लाई c। अगर ये मल्टीप्लाई d ग्रेटर है b मल्टीप्लाई c से, देन ये अपॉन b ग्रेटर देन होता है c अपॉन d। ये हो गया फर्स्ट रूल। लेकिन अगर सेकंड रूल में a मल्टीप्लाई d अगर लेस देन है b मल्टीप्लाई c से, तो इट मीन्स दैट a अपॉन b लेस देन c अपॉन d। ये हो गया सेकंड रूल। और थर्ड रूल ये, अगर ये मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल है, देन ये अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन डी, यानी ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। और हमें फाइंड करना है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आनी चाहिए। सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन फ्रैक्शंस 3 अपॉन 4 एंड हियर 9 अपॉन 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, so you get 3 multiply 12 that is equal to 36। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, so you get 4 multiply 9 that is again 36। so आपको क्या लिखना है here को, therefore 3 multiply 12 equal to 4 multiply 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम है, therefore you can write 3 upon 4 equal to 9 upon 12। it means that we can write 3 upon 4 and 9 upon 12 are equivalent fractions। तो अगर चेक करना है आपको तो इस तरह से चेक करना है, या फिर आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, तो आप फर्स्ट और सेकंड रूल का यूज कर सकते हो। व्हाट इट